हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम फिर से पोइट्री पे हैं और आज की पोएम जो है ये इंडियन राइटर कमला दास ने लिखी है और पोएम का नाम है माय मदर एट 66। Kamala Das was born in 1934 and died in 2009. She was from Malabar, Kerala. Her short biography is given on your text. You can read it yourselves. We'll just go to the poem. See what the poetess is talking about. Just watch the video carefully. Get every information so that you could be able to do translations, or you could be able to answer. You could be able to answer those questions when you get a text extract from your poems and your question papers. Just be concentrated at the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Kamala Das is talking about a journey with her mother. But she says, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. कमला दास कह रही है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, पिछले जुम्मा की सुबह को, जब मैं अपनी माँ को अपनी गाड़ी में लेके ड्राइव कर रही थी माँ के घर से, पेरेंट्स के घर से कोचिन तक। कोचिन कोई दूसरा एरिया है, अपना माँ बाप के घर से निकली है, माँ को साथ वाली सीट पे बिठाया हुआ है और गाड़ी पर ड्राइव करके ले जा रही हैं। कह रही है जब मैं वहाँ से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से अपनी माँ को लेके निकली, तो मैंने गाड़ी चलाते हुए पास वाली बगल वाली सीट पे अपनी माँ की तरफ मुड़ के देखा। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. कमला दास कहती हैं कि जब माँ के चेहरे पे नज़र पड़ी जब उसकी माँ के चेहरे पे, तो देखा कि अंगड़ाई आके उसका मुंह खुल रहा था। नींद की अंगड़ाई उसके चेहरे पे आ रही थी, उसको नींद पड़ रही थी, हल्की सी नींद पड़ रही थी और उसका मुंह खुल चुका था, उसका मुंह खुला हुआ था। अमूमन जब इंसान कमज़ोर हो जाता है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो तब इंसान के अंदर बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती कि इंसान हरा भरा खुशबाश रहे, हर वक्त खेलता फूलता ऐसे। तो माँ के बुढ़ापे को इसने यहाँ पे डिपिक्ट किया है पूरा, कि उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया था और उसको नींद पड़ रही थी। और वट अदर थिंग शी टेल्स अबाउट इज़ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कर्ब्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। और उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, एशन हो गया था, पूरा उसका चेहरा जो है वो रॉक की तरह हो गया था, एशन हो गया था, रॉक की तरह हो गया था, और वो बिल्कुल एक जनाजे की तरह लग रहा था। कर्ब्स जो है जनाजे को कहते हैं, एक जनाजे की तरह उसका जनाजे का चेहरा आप लोगों ने देखा होगा। जनाजे का चेहरा जो होता है वो बिल्कुल
सफ़ेद जैसा हो जाता है, बिल्कुल एशन लाइक होता है। तो कहते हैं कि एशन जैसा हो गया था, रॉक जैसा हो गया था उसका चेहरा, और उसके चेहरे से पेन झलक रहा था, उसके चेहरे से दर्द झलक रहा था। That she was as old as she looked, but soon. यहाँ पे डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट यूज़ किया है। डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट is a poetic device. I have not told about this device. We have discussed about literary devices, but one of the literary devices, the device of contrast. When a poet is talking about something and suddenly it takes a U-turn, he or she takes a U-turn and suddenly starts talking about another thing, that is the device of contrast. She's talking about her mother, and suddenly she's taking a U-turn. How? Look, that she was as old as she looked, but soon, when Kamala Das says that she saw at her mother's face, it was ashen, and it was looking like a corpse, and a pain was realized on her face, and then she says she was looking as old she was, कि वो बूढ़ी उतनी लग रही थी, उसके चेहरे से वो बुढ़ापा झलक रहा था जो बुढ़ापा उसका है। कहती है लेकिन, लेकिन क्या हुआ? लेकिन put that thought away and looked out at the young trees spreading, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, and I looked again at her, wan pale as late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said, see you, Amma, soon. All I did was smile and smile and smile. Here, in the first stanza, she's talking about her mother, about the face of her mother, about the pain of her mother, and suddenly she says that she put that thought away. She was thinking about her mother, and suddenly she put that thought away, and she started talking about what? That she was driving a car, and she put the thought away how her mother was seated on the next seat, and she starts talking about the spreading trees and merry children spilling out of their homes. आपने देखा होगा गाड़ी में भी हम बैठते हैं, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो चलती हुई गाड़ी से हम देखते हैं कि बाहर के जो लोग या बाहर जो दरख्त वगैरह होते हैं वो हमें चलते हुए दिखते हैं। गाड़ी की मूवमेंट एक साइड पे होती है, तो इस वजह से हमें वो दरख्त और बाकी चीज़ें जो बाहर होती हैं वो पीछे भागती हुई नज़र आती हैं। तो उसी को ये कहती है कि कमला दास कहती हैं कि मैंने माँ के चेहरे से नज़र हटा के बाहर देखना शुरू किया, वो अपनी सोच निकाल के बाहर देखना शुरू किया। तो ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब है वो दरख्त जो भागते हुए दिख रहे, तेज़ी से भागते हुए दरख्त नज़र आ रहे थे, और बाहर क्या नज़र आ रहा था? मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। सुबह का वक्त था और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल के स्कूलों की तरफ जा रहे थे। बट आफ्टर, यहाँ पे फिर से कंट्रास्ट, दोबारा से कंट्रास्ट। यहाँ पे एक चीज़ बोली, फिर दूसरे स्टंजा में कुछ और बोला, अब फिर से डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट का यूज़ करती है। वो तो देख लिया बाहर वाला मंजर, अब फिर से वहाँ पे आ जाती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं, माँ को लेकर जा रही है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे पहुंच गई हैं, उसके बाहर सिक्योरिटी चेक से आगे निकल के कुछ यार्ड, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, सिक्योरिटी चेक से कुछ यार्ड आगे जाके शी सेज अबाउट, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन आई लुक्ड अगेन एट हर। फिर से मैंने उसकी तरफ देखा, माँ की तरफ, फिर से मैंने उसकी तरफ देखा। वैन पेल as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. मैंने फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा, दोबारा से उसकी चेहरे की तरफ देखा। सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट का से आगे कुछ यार्ड निकल के मैंने फिर से माँ के चेहरे की तरफ देखा, और क्या देखा? देखा ये
कि उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया था, जर्द पड़ गया था, जैसे लेट विंटर का चांद हो। लेट विंटर के चांद से मुराद यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। पेल एज लेट विंटर्स मून, एज का इस्तेमाल करके यहाँ पे सिमिली, डिवाइस ऑफ सिमिली का यहाँ पे इसने कंपेयर किया है, डिवाइस ऑफ सिमिली यूज़ किया है और विंटर, लेट विंटर के मून से कंपेयर किया है। लेट विंटर के मून जो होता है उसमें उतनी चमक नहीं होती क्योंकि बादल भी छाया होते हैं, तो वो पूरा जो है मुरझाया हुआ जैसे उसकी वो चांदनी लगती है। तो उसके साथ माँ के चेहरे को कंपेयर कर रही है कि ऐसा पीला पड़ गया था जैसे लेट विंटर का मून हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर मुझे वो पुराना दर्द याद आया जो माँ के दर्द उसने देखा होगा कभी बचपन से। माई चाइल्डहुड्स फियर, ओ मेरा बचपन का वो डर। बच्चों को हमेशा यादें जुड़ी होती हैं माँ बाप के साथ। जब माँ को कुछ हुआ था तो बच्चा डर गया था, कहता वो बचपन का डर मुझे याद आया कि पता नहीं माँ को क्या होगा, पता नहीं माँ बीमार है, माँ कमज़ोर है, बुढ़ापे में है। तो वो बचपन का डर कि माँ को ना खोने का डर मेरे पास फिर से आ गया दिल में। कहती है लेकिन बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने जो कहा वो सिर्फ इतना ही था, फिर मिलते हैं अम्मा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। और आगे के बढ़ती हैं, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कमला दास आगे बढ़ते हैं, कहती हैं माँ को निराश नहीं किया, माँ को डराया भी नहीं है, माँ को डराया भी नहीं है, सिर्फ इतना कहा। डर था दिल में लेकिन माँ के साथ डर शेयर नहीं किया। माँ को इतना कहा सी यू सून अम्मा, एंड माँ से ये कहा, माँ को ये करके दिखाया, क्या करके दिखाया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। होप यू enjoyed the class. We'll be talking, we'll be taking the language work and the textual questions in the next class. Till then, have a nice day.